भाइयों बहनों Set. We have Dr. Rakshita, Super excited. kid co-host Sneha. Like school. No. In college you can bunk. I want to study psychology. Why did you choose this? My heart broke. I know what it feels to be unwanted, called as unworthy. If this thing is happening in schools, it's In our school, toxicity has peak level. my mind is blown. Oh my god. Because I was from a Hindi medium school. कोई भी school ready नहीं था मुझे लेने के लिए. So they took me in second class. 2 महीने में I topped the class. So you know it right. People will try to pull you down. पूरा proposal है मेरे पास. आप और मैं discuss कर रहे हैं. पीछे मेरे पापा बैठे हैं. Will you take me seriously? Will you? There is a sense of honesty and intensity in your voice. For the clarity, I'm talking about the RG Kolkata incident. इस केस में हमको भी पता है कोई जस्टिस नहीं मिलने वाला, सारे एविडेंसेस मिटाए जा चुके हैं, कुछ नहीं मिलने वाला. लेकिन हमारी बस फाइट ही अब इसलिए है कि एटलीस्ट अगली निर्भया अगली अव्या ना हो. Just repost the stories and you are like, अभी तो मैं cool नहीं हूँ. It's not about being cool. It's about bringing justice. We don't even care what is happening in our country. People forget there are no talks on that. What they did to the doctor, they just... Why to hang him? We'll just break his bone like he did. What a women are you raising? What this society is turning into. Money is something which can give you everything. क्या खा के पैदा किया है? I thought you will bring a cracker. What a big bomb. Hi everyone, welcome back to Just Kidding with Sid. Today is very different because we have our first female elderly guest on the channel. I shouldn't say elderly, but a mature guest on the podcast. Along with her, there is someone who's also mentally maturing with time, but that's completely fine. We'll figure that out. But we have Dr. Rakshita. To be honest, he does a lot of things. You might have seen her on the internet protesting, talking about biology, talking about medical life and whatnot. But what struck me is how beautifully she has graced herself and her life and her family along with herself towards a very beautiful journey. So I value that, and that's why we are here to understand her values, principles, and share a few stories along with our kid guest. But hi, Thank you Rakshita. so much for inviting me, and I'm like super excited because of her. And I guess हम लोग कुछ ऐसा share कर पाएंगे जो कुछ valuable होगा, थोड़ा fun होगा. So I'm very excited. Yeah. Yeah. Talking about the kid co-host, Sneha, how are you? I am fine. Just fine. Say something more. Thank you so much for giving me such a warm welcome, and I'm really overwhelmed to join you with this podcast. Is it? Yeah. She follows me. She's a very old follower of mine. But कौन से standard में हो? 6th, 6th में हो. What's your age? 11. 11. Nice. You like school? No. Good. We'll start on that note. Talking about school, Rakshita, how was your school? Oh, my school life was very bad. Very bad? हाँ डेफिनेटली मतलब बहुत बार ऐसे बोलते हैं ना कि स्कूल लाइफ में अभी भी हमको वापस स्कूल लाइफ में जाना है. आई डोंट वांट टू गो बैक टू माय स्कूल लाइफ. आई एम डूइंग ग्रेट. एज सून एज वी एंटर कॉलेज लाइफ इज़ वेरी गुड. नो स्कूल नथिंग. हर रोज़ सुबह उठ के 8 बजे मम्मा 7 बजे गेट बजाना शुरू करेगी. चलो चलो चलो. इन कॉलेज यू कैन बंक. यू हैव many other options to explore. You can do what you actually wanted in your life because as you all know हम लोगों के पास इंजीनियर और डॉक्टर ही पहली चीज़ होती है जो हमको बनना पड़ता है. Then you can follow your passions apparently according to Indian parents. So yeah, college life is going to be great. You have to be a bit, cautious because her parents are sitting right here. उधर से ही चप्पल आएगा. Flying chapel. But no worries. She said about passion. What is your passion? I would like to become a doctor. Yeah, just like her. Yeah. Ah. Like what do you have something in mind? Like MBBS करना है ये सुना इन चीज़ों के बारे में कभी? कौन सा प्रोफेशन होता है? So what did you like the most? I want to study psychology. Oh, you want to Interesting. become a psychiatrist? Yeah. Or a psychologist? No, psychiatrist. Psychiatrist. So you need to do MBBS for that first and then your post-graduation. Yeah. Nice. She's going to take you through the entire timeline
I mean, like, it's very overwhelming to listen to this thing क्योंकि everyone just says कि I want to become a cardiologist, I want to become a neurologist. Psychiatrist is something जिसका rank भी उतना नहीं जाता है, and people usually don't want to take psychiatry. So I'm glad. Like when I was preparing for NEET UG, I used to say कि I will teach. तब मुझे नहीं पता था कि मैं क्या पढ़ाने वाली हूँ, बट आई स्टिल रिमेंबर मेरा ड्रॉप ईयर जब चल रहा था तो मैंने सर को बोला था कि सर मैं ना मुझे पढ़ाना है. उन्होंने बोला कि तू एक बार अभी प्रिपरेशन कर रही है, तू इस एग्ज़ाम को क्लियर कर ले, उसके बाद तुझे पढ़ाना है तो पढ़ा लेना. MBBS ख़त्म होने के बाद यू कैन गो नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस में. तो क्लिनिकल ब्रांचेस मीन्स जिसमें डॉक्टर्स प्रैक्टिस करते हैं. नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस फॉर एग्जाम्पल एनाटमी, तो वो कॉलेज में प्रोफेसर्स जो पढ़ाते हैं, तो उन ब्रांचेस को तू ले लेना. और इफ़ यू वांट टू रियली want to become a teacher only, तो those are the branches for you. And तब उन्होंने मुझे भी यही चीज़ बोली थी कि वैसे ऐसा मैंने बहुत कम सुना है कि कोई उस साइड जाना चाहता है जहाँ पे रैंक्स भी कम जाते हैं, ईजिली चीज़ें मिलती हैं. बट जैसे बोलते हैं ना कि टीचिंग फॉर एग्जाम्पल, मैं हमेशा बोलती हूँ, बहुत लोग बोलते हैं कि वाई टीचिंग, यू आर ऑलरेडी डूइंग गुड, सिर्फ नीट PG क्रैक करो. पर मुझे लगता है इंडिया के अंदर ना टीचिंग हमेशा किसी का फर्स्ट चॉइस नहीं होता. It's always second choice. If some person is not able to crack any exam या फिर कुछ भी वो हुआ, तब जाके वो टीचर्स बनते हैं. बट मुझे ये अपना फर्स्ट प्रायोरिटी बनाना था. एंड आई लव टीचिंग. मेरा पूरा दिमाग एकदम टेंशन में होता है पूरा दिन. जैसे ही मैं 1 घंटे की क्लास लेती हूँ, आई एम सॉर्टेड. आई जस्ट लव इट. तो या आई एम ग्लैड. So she teaches NEET aspirants. You know NEET, right? NEET exam. डॉक्टर बनने के लिए जो दी जाती है. So she teaches biology to all the NEET aspirants and students. How many people do you teach? How many kids? It's like I have 12 lakhs plus ka channel on YouTube. And if we talk about live sessions, sometimes I have 15,000 students studying live for 11 hours straight. Wow. I take 11 hours का सीधा long live sessions. बाप रे. बीच में ब्रेक, कॉफ़ी, चग एंड चलता है पूरा 11 घंटे, 12 घंटे. तो Do you want to become a doctor now? I mean, like क्या भाई? नहीं तुमको equanimity. डॉक्टर ही बनना चाहिए. आई एम सजेस्टिंग दैट जस्ट क्योंकि मतलब हम तो डूबे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे. Yeah, नैया साथ में ही हम नैया पे हैं. But why did you choose this and not other fields? The study of brain. Why? Because I know what it feels to be unwanted. What it feels to be unloved, what it feels to be like called as unworthy. But we love you, darling. And that is why you have taken it, internalized that situation into converting into a profession. Yeah. So you have your intent, you have your purpose already. Yeah. It's crazy, right? 6th क्लास में तो मुझे पहले साइंटिस्ट बनना था, फिर मुझे फैशन डिज़ाइनर बनना था, एक बार मुझे प्रधानमंत्री बनना था. हाँ सच में. आई यूज्ड टू लाइक close the room and then I used to it's okay. Bhaiyo bhaiyo sit. I'm never this sure in my life. I'm not even sure अभी तक कि मुझे But डॉक्टर maybe बनना है. back then you were sure about it for a while, like 1 साल के लिए, 2 साल के लिए. No. उसके बाद चेंज हो गया. No. ऐसा नहीं था. हर थर्ड डे. हर थर्ड डे. अच्छा. मेरा बर्थडे 7 जुलाई को है और मेरे जो मामा हैं, सगे मामा जी, उनका भी सेम है. ही इज अ चीफ साइंटिस्ट. तो देन आई वाज लाइक सेम डेट ऑफ बर्थ है, तो मैं भी साइंटिस्ट ही बनूंगी. तो फिर काफी दिन तक मुझे साइंटिस्ट बनना था. Wow. That's a very like tough intent to have in life. नहीं बट talk like jokes apart, if this thing is happening in schools, it's Yeah. Horrible. really bad. I mean, like, I don't want to use that word, but Yeah. it is. Where are we heading as a society? This Gen Alpha is, Yeah. yeah, And what surprises me that she is aware of it. yeah. Like people, it happens with people, but people suppress that feeling. They suppress the very fact that hey, this is happening. तो बताते नहीं है, लोगों को बताते नहीं है. ऐसा लगता है ये सबके साथ होता है, मैं अकेली नहीं हूँ इसमें. But you being conscious of it, how are you so conscious? मतलब तुम्हें अवेयरनेस कैसे आई है कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है? Because I cried, my heart broke, my sister guarded me.
your older sister? Yeah, How did but you- still पता नहीं चलता है क्योंकि I still remember I was in class 3rd or 4th or something. We were 3 friends and Yeah. you know right, तीन तिगाड़ा काम काम बिगाड़ा something like that. तो देयर वाज द गर्ल जिसको मैं अपनी कुछ भी चीज़ें बोलती एंड फिर वो दूसरी जो थर्ड लड़की थी उसके बारे में मुझे कुछ उल्टा बोल देती. अब वो बोलेगी तो मुझे भी ऐसे हो जाता अच्छा अच्छा ठीक है फिर मैं भी एक लाइन बोलूंगी. हाँ. अब मैं नेक्स्ट डे जब नहीं हूँ एब्सेंट हूँ तो उन दोनों का बॉन्ड बन चुका होगा एंड वो एक दूसरे को बता देंगी एंड So true. बट आई वाज नॉट अवेयर कि Yeah. मेरे साथ ऐसा कुछ हो रहा है एंड इट्स अफेक्टिंग माय मेंटल हेल्थ. Like- मेंटल हेल्थ तो पता भी नहीं लाइक माय माइंड इज ब्लोन. ओह माय गॉड. And have you experienced something like that in your school life? Yeah, for example I told like this but मेरे साथ क्या होता था आई वॉज ऑलवेज अमंग दो स्टूडेंट्स इन क्लास सेकेंड. मेरे पापा का एकदम ऑल ऑफ सडन दिसंबर में ट्रांसफ़र हो गया एंड मेरे को बिकॉज आई वॉज फ्रॉम अ हिंदी मीडियम स्कूल कोई भी स्कूल रेडी नहीं था मुझे लेने के लिए जनवरी में क्योंकि मार्च में एग्जाम्स होते हैं स्कूल्स में. सो वी ट्राइड एवरीवेयर. तो थर्ड क्लास में थी तो एक स्कूल जैसे तैसे करके माने उन्होंने मुझे बोला कि हम इसको सेकेंड में लेंगे क्योंकि उसको इंग्लिश नहीं आती अच्छे से. तो दे टुक मी इन सेकेंड क्लास. 2 महीने में आई टॉप द क्लास. boom and then I jumped the class directly to 4th. So मतलब मैं इन चीज़ों में ऐसे विश्वास रखती हूँ I don't give a damn. No. You know starting में मैं इतना ज़्यादा अफेक्ट होती थी एक सिंगल कमेंट आ जाता तो what I used to do was I used to try कि सामने वाले इंसान से अच्छे से बात करूँ और उसके ओपिनियंस चेंज करूँ. बट अभी आई हैव रियलाइज्ड इट्स नॉट एट ऑल पॉसिबल एक इंसान के ओपिनियंस को चेंज करना. हमेशा ना लाइफ में एक चीज़ ये समझनी चाहिए अगर आपको कोई कुछ बुरा बोल रहा है ना उनके खुद के लाइफ के एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे उनके खुद के लाइफ में जो ट्रॉमास हुए हैं उनके बेसिस पे वो उस चीज़ का कंक्लूजन निकाल रहा है और फिर आपको कमेंट कर रहा है. बट योर लाइफ इज़ डिफरेंट. सो you should be the main character of the movie. It should be like when you're walking na a boss lady wala song should play and you're walking with confidence. Doesn't matter what you are wearing, doesn't matter What you are. yeah जो मुझ में टैलेंट है वो किसी में नहीं है. या और हो सकता है you're पढ़ाई में बेटर हो मुझे फर्क नहीं पड़ता. लाइक अभी माई फाइनल ईयर एग्जाम्स ऑफ MBBS माई मेडिसिन का 1 पेपर आई स्कोर्ड लाइक 75 में हम लोग टॉप करते हैं ठीक है 100 में से 75 इट्स लाइक टॉपर का मार्क्स. सो आई स्कोर्ड 71. पीपल वर लाइक सीनियर्स ये तो 5 यूट्यूब marks. भी करती है. नहीं हाँ. नहीं नहीं ये तो यूट्यूब भी करती है इतना कुछ करती है इसके इतने नंबर तो नहीं आ सकते इसका पेपर रीचेक करो. दे रीचेक्ड मार्क्स नहीं काट पाए. सो यू नो इट राइट पीपल विल ट्राई टू पुल यू डाउन. और अगर मेरे 71 नहीं भी आ रहे हैं मेरे 61 भी आ रहे हैं बट वॉट आई एम डूइंग इन माई लाइफ उसमें ज़रूरी नहीं है कि मैं उसको भी बैलेंस कर पाऊंगी. आई नीड टू कॉम्प्रोमाइज समथिंग. इफ़ आई एम डूइंग समथिंग एल्स आई एम गुड एट दैट और आप शायद उसमें अच्छा नहीं हो और तभी जाके ग्रो करोगे. मैंने बहुत फर्क पढ़ा के देखा है. शुरू में वॉट माई डैड थिंक्स अबाउट मी शुरू में वॉट पीपल थिंक डजंट मैटर. मैं हमेशा ये चीज़ मानती हूँ गलत काम मत करो किसी का गलत मत करो लेकिन जहाँ खुद का भला हो रहा है ना वो छोड़ो मत. सिंपल एंड कीप रॉकिंग इन लाइफ. लेट देम से व्हाटएवर दे वांट टू क्योंकि यू नो कि आज मैं कुछ हो सकता है उतना वर्दी नहीं हूँ बट मुझे पता है कि मैं किस डायरेक्शन में चल चुकी हूँ और इस पर्टिकुलर टाइम के बाद आई विल बी समथिंग जो तुम लोग टच भी नहीं कर सकते. बस सिंपल. That's beautiful. I think has that given you any kind of clarity in terms of what you have to do after this when you get out of this studio? Has this given you any clarity? You have another sister for you. I'll go in the school, I'll flex. I talk with Dr. Rakshita and she's my sister from another mister. But that's very beautiful and it takes a lot for a kid to be vulnerable, I feel. Exactly. I felt very bad and Yeah. surprised as well कि she's aware. Yeah. And you're also going through phases of vulnerabilities right now in your life. And you are finding different outlets, and I'm pretty sure amidst what is happening in the world, in India right now, we see your videos, we see you coming there, here, and there is a sense of honesty and true
intensity in your voice, do you think you have a reason behind other than what the brutality of this? Do you have any other reason? In my I'm life, talking for the clarity. I'm talking about the RG Kar Kolkata incident. I got it. So it's like in my life, even I have faced बहुत सारी ऐसी चीज़ें which maybe I will not be comfortable sharing on the camera, but because of that, all these things felt very personal. And इन चीज़ों ने मेरे को ट्रिगर वहाँ पे किया. We started protesting normally. अगले दिन one of my students, she called me. She was crying कि दीदी मुझे बस सम लखनऊ कुछ कोचिंग उसने ज्वाइन की थी, जाना ही था प्रिपरेशन के लिए, पर मेरे पापा ने मना कर दिया क्योंकि उनको लगता है वहाँ पे जाना अब सेफ नहीं है आफ्टर दिस केस. सो इट्स लाइक पिछले 4-5 साल में मैंने जितना भी लाइफ में किया, पापा को धीरे धीरे कन्विंस किया. मेरे को हर रोज़ आधा घंटा पापा से बात करनी पड़ती है. अगर मुझे किसी इवेंट में जाना है ना, यू नो हाउ आई यूज़ टू कन्विंस. अभी तो मेरे को बस ऐसे बोलना है कि ठीक है पापा जी मैं मुंबई जा रही हूँ. अदरवाइज हाउ आई यूज़ टू कन्विंस. मैं पापा को कॉल करती, मैं पापा को बोलती कि पापा जी आपको पता है मैंने एक किताब पढ़ी, उस किताब में लिखा था कि नॉलेज डेवलप करना, स्किल्स डेवलप करना सबसे ज़्यादा वो इम्पॉर्टेंट है, और उसके बाद नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है. बस इतना टॉपिक आई टच एंड आई लीव. इसके ऊपर थोड़ा और डिस्कशन करूँगी. 2-3 दिन के बाद फिर मैं पापा को बोलूँगी कि दूसरे ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आज वीडियो बना रही थी, तो अब मेरे को ना 15 मिनट की वीडियो जाके सीखना पड़ेगा, जबकि हम दूसरे क्रिएटर्स से मिलेंगे ना, वो कैसे कैमरा रखते हैं, वो करते हैं, उनसे मैं बहुत ईजिली जल्दी से सीख सकती हूँ. तो बस ये वाला टॉपिक टच करके मैंने छोड़ दिया. अब मेरे पापा को मैं पॉजिटिव करते जा रही हूँ. अब 4-5 दिन के बाद क्या होगा, मैं बोलूँगी जैसे क्रिएटर इवेंट्स वगैरह होते हैं वैसे इनमें जाना चाहिए. मेरे को तो जाने का बिल्कुल मन नहीं करता, आपको पता ही है सिक्योरिटी रीजंस है, मेरे को बिल्कुल जाने का मन नहीं होता, पर मेरे को जाना चाहिए. पता है, बस इतना करके छोड़ दिया. 3-4 दिन बाद पता है बाबा जी मुंबई में एक इवेंट हो रहा है, मैं तो देखो जा नहीं रही है ना, लेकिन ये चीज़ें ना मेरे को कहीं ना कहीं ग्रो करने से रोक रही हैं. एंड देन माई डैड विल बी लाइक नो 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 यू शुड गो. मतलब पापा को कन्विंस करने तक मुझे, अगर 1 महीने बाद इवेंट पे जाना है तो पहले आई जस्ट टच द टॉपिक कि मुझे ट्रिप पे जाना है, तो बाहर जाना कितना सीखने को मिलता है अकेले ट्रैवल करने में, सोलो ट्रैवल करने में. तो पहले मैं पापा को वो वाला टेड टॉक दूंगी, फिर 4-5 दिन में टच नहीं करूँगी ताकि पापा को लगे कि नहीं वो तो ऐसे ही बोल रही थी. उसके बाद धीरे धीरे ये सिचुएशंस, मतलब इतना कन्विंस करके तब जाके पापा मानते थे. तो इसीलिए मुझे ना बहुत ज़्यादा हमेशा से ऐसे फील हुआ है. लाइक ड्यूरिंग माई 3rd ईयर आई वॉज डूइंग बहुत अच्छा एंड आई हैड अ सॉर्ट ऑफ बिजनेस प्रपोजल. सो आई वेंट टू बैंगलोर. एक मीटिंग वेटिंग था. माई डैड केम विद मी लाइक ठीक है आप होटल तक आओ, इट्स फाइन. अभी आई एम गोइंग, आई एम लाइक पूरा प्रपोजल है मेरे पास, आप और मैं डिस्कस कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल पीछे मेरे पापा बैठे हैं. विल यू टेक मी सीरियसली? विल यू? आपको ऐसे लगेगा उसके पापा पेरेंट्स तो अभी तक उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, ये बिजनेस क्या खड़ा करेगी, ये ब्रांड क्या खड़ा करेगी. तो मुझे उन चीज़ों से धीरे धीरे निकलने में वो हुआ. एंड जब उस लड़की ने मुझे बोला कि मुझे बाहर नहीं जाने दे रहे, तो मुझे ऐसे फील हुआ यार जिस इक्वालिटी के लिए मैंने खुद की लाइफ में बहुत फाइट करा, जिस इक्वालिटी के लिए शायद सारी लड़कियां फाइट कर रही होंगी, ये एक इंसिडेंट अगर यहाँ पे कोई स्ट्रिक्ट लॉज नहीं बने, ये पता नहीं कितना पकड़ के हमारे देश को वापस से खींच के ले जाएगा. मैंने तो सीधा अपनी वीडियो में बोला था 5 साल पीछे तो हम ऑलरेडी जा चुके हैं जो इक्वालिटी के टर्म्स में हम लड़कियों को लेके आए थे, और अगर कुछ लॉ नहीं बना तो 2010 में हम पहुंच जाएंगे. जैसे 2010 में लड़कियों को ट्रीट किया जाता था वहां हम पहुंच जाएंगे. इट्स हाई टाइम. हमको इस केस में हमको भी पता है कोई जस्टिस नहीं मिलने वाला, सारे एविडेंसेस मिटाए जा चुके हैं, कुछ नहीं मिलने वाला. लेकिन हमारी बस फाइट ही अब इसलिए है कि एटलीस्ट अगली निर्भया अगली अभया ना हो. मतलब ठीक है हर बार ये लड़की ने ये पहन रखा था, वहाँ गए हुए थे, हर चीज़ों में कुछ ना कुछ गलतियाँ निकालते हैं, लेकिन दिस टाइम शी वॉज इन हर वर्क प्लेस डूइंग हर ड्यूटी. बट फिर भी मतलब फिर मैं कहाँ से अपने आप को समझूँ. मैं जब भी घर से हॉस्पिटल जाती हूँ, मान लो रास्ते में जा रही हूँ, नाइट ड्यूटी है, मैं पापा को कॉल करते हुए मान लो जा रही हूँ, जैसे ही मैं हॉस्पिटल में कदम रखती हूँ मैं पापा जी को बोलती हूँ पापा जी चलो मैं पहुँच गई. पापा कहते हैं अच्छा हॉस्पिटल पहुँच गई, ठीक है. मेरे पापा को भी ऐसे हो जाता है अच्छा बच्चा हॉस्पिटल पहुँच गया अब तो सेफ होगा. तो क्या अब मेरे पापा को रात भर जब मैं नाइट ड्यूटी कर रही हूँ उनको इस टेंशन में बैठना चाहिए कि मेरी बेटी दूसरों को बचाने गई है पर खुद जिंदा आएगी कि नहीं आएगी? हम लोगों का 36 घंटे की ड्यूटी होती है, 36 आवर्स स्ट्रेट. अभी ऐसा होता है कि रात को 4-5 बजे के आसपास मान लो पेशेंट फ्लो कम हो गया और मेरा एकदम से ऐसे आंखें बंद होनी स्टार्ट हो गई. नाउ आई नीड अ बेड.
मेरे को आधा घंटा 1 घंटा भी सोने दोगे ना, दैट इज मच मोर देन सफिशिएंट फॉर मी. तो मेरे को हॉस्पिटल में जो भी बेड दिखता है मैं उस पर जाके लेट जाती हूँ. अब मुझे ना कहीं पे सोने में भी ना 15 बार 20 बार पहले सोचना पड़ेगा. तो इट्स अबाउट कितना रिस्ट्रिक्टेड फील होता है जब मुझे इतनी छोटी छोटी चीजें करने से पहले भी सोचना पड़ेगा. और चीजें लाइफ में कम है क्या, और टेंशन कम है क्या? अब ये करने से पहले भी यहाँ जाऊं, इस इंसान के साथ बैठूं कि नहीं बैठूं, ये करूं कि नहीं करूं. सो या आई मीन लाइक इट्स हाई टाइम हम लोगों को स्ट्रिक्ट लॉज बनाने पड़ेंगे. ऑल द गल्फ कंट्रीज एंड ऑल, उन लोगों के इतने स्ट्रिक्ट लॉज होते हैं, विद इन 1 वीक फांसी चढ़ा दी जाती है, कहीं पे रोड के बीच में खड़े करके गोली मारी जाती है. व्हाई नॉट इंडिया? हम लोगों के पास क्यों नहीं है ऐसी लॉज? What do you think that one law should be here in India which can solve this problem? मैं तो बोल रही हूँ ऐसा कुछ पनिशमेंट दो और सबके सामने बीच में खड़ा करके दो कि अगले वाले जिसका 100% प्रूव हो गया ना कि हाँ इसी इंसान ने ऐसी चीजें करी हैं, फटे उस इंसान की करने से पहले कि यार ऐसा किया तो ऐसा हो सकता है. यही तो है ना. Yeah. अभी आपको गुस्सा आ रहा है, रास्ते में कोई पुलिस ऑफिसर चल रहा है, ठीक है, आप भिड़ गए, पुलिस ऑफिसर ने आपको डांट दिया, थप्पड़ मार पाओगे दोबारा घुमा के? आपको पता है कितनी स्ट्रिक्ट लॉज उनके पास है. एक ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर को अगर आपने थप्पड़ मार दिया तो, लेकिन एक डॉक्टर को चलते फिरते हॉस्पिटल में चमाड़ मार के जा रहे हैं. एंड यू नो हम लोगों को लगता है सोशल मीडिया से हम अवेयरनेस फैला रहे हैं, लेकिन जो लोग ये करते हैं ना उनके दिमाग में ये जा रहा है कि अच्छा ऐसा किया भी जा सकता है और कुछ होता भी नहीं है. इसीलिए केसेस बढ़ते जा रहे हैं. लाइक 1-2 years बैक देयर वॉज अ इंटर्न डॉक्टर केरला में सर्जरी के अंदर पोस्टेड थी. ई सेल होता है हम लोगों के वहाँ पे, जिसमें जो क्रिमिनल पेशेंट्स होते हैं वो होते हैं. वहाँ पे एक पुलिस ऑफिसर भी खड़ा है, क्रिमिनल पेशेंट ने स्टैब्ड द डॉक्टर, शी डाइड. सोचो, नीट यूजी क्लियर किया होगा, 4.5 साल की एमबीबीएस खत्म करी होगी, इंटर्न, अभी फाइनली उसको लाइफ में अपना लाइसेंस मिलने वाला था, वो जस्ट निकलने वाली थी. उसके पेरेंट्स के साथ क्या बीत रही होगी, ऐसी क्या गलती कर दी. 15 days बैक रात को 3 बजे की बात है, अ पेशेंट पार्टी केम टू अस एंड बच्चे को ऐसा कुछ नहीं था कि उसको एडमिशन लिया जाए. एंड द पर्सन वाज लाइक, कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, या फिर तुम्हारे साथ वही करें जो आरजीकर में हुआ था. उसके बाद एफआईआर फाइल करने गए, एफआईआर भी नहीं हुई, क्योंकि ठीक है थ्रेट के नाम पे भी नहीं किया, पता नहीं मतलब. Wow. And this happened recently, 15 years ago. Yeah, after this case only, right? What do you feel about this, Sneha? Even doctors are considered as God because they save their lives. And now even the God is not safe. Yeah. You'll just repost the stories and you're like, abhi to main cool ban gaya. It's not about being cool. It's about bringing justice. Some people are like, why the hell should I just post the story? What would happen by just posting that? It is not about like just posting the stories. It can also happen with any one of you, any one of the girls you are in touch with. And why are we like this? We don't even care what is happening in our country. The government just whatever that ministers, they'll just come, please vote for us, we'll give you this, we'll give you that. But for that they'll just shout and give us vote, we'll give you that. But where is the justice? We don't want anything like to wear, to eat. We just want, like, that is a basic need. But what the real need is for our country right now is justice. It is still remaining. Like 2010 back, there were no social media, so we consider that. But still people protested. The government, people protest for hours and hours. But the government, when they don't get any response, people forget. People forget, there are no talks on that. Ministers are like, they'll just shout, they get tired, they'll go back. People forget. They'll go back. Afterwards, people like the ones who do all these things are born. Because if one is doing, nothing happened. Then they can feel like, chalo, he did like that, nothing happened. Now I will do that, nothing will happen. What they did to the doctor, they just, her legs, and because of that, her bone broke. So why shouldn't we just
they are telling that we'll give the punishment, we'll hang him. Why to hang him? We'll just move his legs, we'll break his bone like he did. Okay. Like podcast के बीच में what a women are you raising? Like hats off to the parents. Trust Yeah. me. मतलब I'm surprised. I just don't want to talk today. I just want to listen to her. Do you think that is true punishment? True punishment is Yeah. giving the exact Think what they replica did to that. of what happened. Hmm. I never thought of that. We think of कि इसका काट दो, like चूहे भर दो, ये कर दो. But this also makes sense in a way. I never thought of this. I literally did not think of this. I'm just खत्म है मेरा. What do you want to tell her? She protests everywhere. Never give up. Never? Never give up. You are doing your best. You are doing the best thing which a person could ever do. बट टू बी ऑनेस्ट ना एक पॉइंट के बाद बहुत सफोकेटिंग होना स्टार्ट हो जाता है क्योंकि इट्स बीन मोर देन अ मंथ. हर बार उस टॉपिक के बारे में बात करना, हर बार उस चीज़ को इमेजिन करना, इट्स वेरी ट्रॉमेटाइजिंग टू बी ऑनेस्ट. हम लोगों ने 10th अगस्त से प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था एंड तब से लेके एक ही चीज़ होती थी. सारा दिन मेरे फ़ोन में एक ही चीज़ चलती थी अबाउट द न्यूज़. व्हाट इज़ हैपनिंग, आज मिला क्या, रात में एकदम से जस्टिस आया क्या, एकदम कुछ हुआ क्या, समथिंग मिरेकल लाइक होने वाला है क्या, कि कुछ एकदम ऑल ऑफ सडन हमको पता चल जाएगा क्या. बट अभी ना ऐसा लगने लगा है कि बस हम लोग ना वी आर इन अ सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक कंट्री. बस हम लोग बजाए जा रहे हैं घंटी कि प्लीज़ कुछ कर दो. इट्स लाइक यू आर सिटिंग हियर और मैं जब से कुछ रिक्वेस्ट की जा रही हूँ प्लीज़ एंड यू आर नॉट इवन लुकिंग एट मी. it's a very helpless situation. तो अभी we were hoping कि Supreme Court will do something, but I don't know why their focus is just about doctors duty नहीं कर रहे हैं. अरे doctors duty कर रहे हैं. One statement was like doctors की वजह से 29 patients की death हो गई. प्रोटेस्ट पे कौन बैठा है? जूनियर डॉक्टर्स किस चीज़ के लिए होते हैं? वहाँ सीखने के लिए होते हैं. वहाँ सीनियर को किसी को खड़ा होना है, जूनियर डॉक्टर साइड में खड़ा होगा या फिर उनके सामने चीज़ों को करके दिखाएगा. तो अगर जूनियर डॉक्टर, मान भी लिया हमने कि चलो हम ड्यूटी नहीं कर रहे, पर जूनियर डॉक्टर के ना होने की वजह से पेशेंट्स मर रहे हैं, इसका मतलब आपको और डॉक्टर्स की ज़रूरत है. आपके स्टेट में डॉक्टर्स नहीं है. वी आर देयर टू लर्न. अभी हम लोग उतने कैपेबल नहीं हो पाए हैं, लेकिन नहीं है. आई एम द वन जो रात में पूरी रात लेबर रूम मेरे भरोसे होता है. आई एम एन इंटर्न डॉक्टर. मैं डिलीवरीज करती हूँ सब कुछ. एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके देखो, इंटर्न वो लिख रहा होगा, क्लर्क का काम कर रहा होगा, बट आई डिलीवर. बिकॉज ओटी में कौन जाएगा फिर? ओटी में कहाँ से कैसे होंगी ओटी? सीनियर्स को उधर जाना पड़ेगा. डॉक्टर्स ही नहीं है, फैसिलिटीज़ ही नहीं है. पेशेंट्स हम लोगों के नीचे होते हैं, बेड ख़त्म हो चुके होते हैं. 100 किलोमीटर की रेंज में कोई और गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं है. हमको नीचे बिठाना पड़ता है, वहीं ग्लूकोज चढ़ाते हैं. हार्ट अटैक का पेशेंट नीचे बैठा है, हम लोग का पेशेंट मर रहा है, हम कॉल करके बोलते हैं ए आईसीयू में बेड है क्या? नहीं दूसरी यूनिट ने बुक कर लिया. आईसीयू में बेड नहीं होता है और हमको पता है हम यहाँ नहीं बचा सकते. आईपीडी में कैसे बचाएंगे इस पेशेंट को? हमारे पास यहाँ पे कोई भी वो चीज़ें नहीं है, मॉनिटर्स कुछ भी नहीं है जिससे यहाँ पे इस इंसान को बचाया जा सके. पर नहीं, कितने सारे इन्वेस्टिगेशंस, हमको इमीडिएट रिपोर्ट्स चाहिए होती हैं, लेकिन हमारे पास बेड साइड रिपोर्ट्स करने के लिए कुछ है नहीं. तो उनको बाहर बोल के भेजना पड़ता है. उन लोगों के पास उतना पैसा नहीं होता कि बाहर से किसी डायग्नोस्टिक सेंटर से वो सारी वो रिपोर्ट्स करवा के आ सके. बिना रिपोर्ट्स के हम क्या करें? हम कैसे उस इंसान की ट्रीटमेंट कर सकेंगे? और उसके बाद फिर बोला जाएगा कि डॉक्टर ने मार दिया. बहुत बार ऐसा होता है, 8-9 दिन तक पेशेंट प्राइवेट में रखा, पैसा जब खत्म हो गया 9वें-10वें दिन, अनस्टेबल पेशेंट था, गवर्नमेंट में लेके आएंगे, आते आते और अनस्टेबल हो चुका होगा, फिर बोलेंगे डॉक्टर ने मार दिया. एक मेरा फर्स्ट गाइनी का डे, जैसे ही मैं एंटर करी, अभी मुझे नहीं पता है, ठीक है, मेरे को गाइनी आती है, मेरे को थ्योरेटिकली सब कुछ आता है. जैसे ही मैंने एंट्री करी, सामने ट्राइज रूम में एंटर करने से पहले एकदम एक फीमेल का छोटा सा बेबी 3-4 मंथ्स नीचे गिर गया, अबॉर्टेड. अभी आई डोंट नो व्हाट टू डू. मैं इधर उधर सबको बुला रही हूँ. जैसे ही अंदर गई, जाते ही 2 बेड होते हैं हम लोग जहाँ पे ट्राइज में जो भी नई फीमेल आती है उसको देखते हैं और फिर उनको अलग अलग वार्ड्स में भेजते हैं. दूसरे बेड पे देयर वाज अ लाइक समवन, चद्दर ढक रखी है उसके ऊपर, और हमको अब अपने पेशेंट देखने स्टार्ट करना है फटाफट से, क्योंकि हमारी यूनिट ने टेक ओवर कर लिया है. दैट पेशेंट वॉज डेड. एंड उसको इसीलिए उठाने नहीं दे रहे थे क्योंकि
पेशेंट पार्टी ने बोला कि डॉक्टर ने मारा है। अभी एक बात बोलो, जब हम लोग एंटर करते हैं ट्राइज रूम में हमारा काम होता है एक पेशेंट को 5 मिनट तक देखने का। 5 मिनट में हम फटाफट देखते हैं और डिसाइड करते हैं कि इसको कौन से वार्ड में भेजना है, फिर वहाँ पे डिसीजन लिया जाता है। तो एक इंसान जो 5 मिनट में ही उसके साथ ऐसा कुछ हो गया, इसका मतलब वो पेशेंट बहुत ज़्यादा अनस्टेबल ऑलरेडी था, इसमें डॉक्टर की गलती नहीं है। कई बार, इतनी बार ऐसा होता है, मॉब अटैक्स होते हैं। एक बार वी वर सिटिंग इन द ट्राइज रूम, रात में एकदम से हमारा कलीग केम एंड ही वाज लाइक भागो भागो जल्दी छुप जाओ जल्दी। हम कहा हुआ क्या, तू जल्दी छुपो फटाफट। मॉब अटैक हुआ, किसी ना किसी और डॉक्टर के ऊपर गुस्सा आ गया होगा या फिर लड़की पैदा हो गई होगी। आई डोंट नो लोगों को इन चीज़ों के बारे में पता भी है कि नहीं पता है, लेकिन लड़की पैदा होने पे उनको गुस्सा आ जाता है, वो मदर को मारना स्टार्ट करते हैं। फिर हम डॉक्टर जाके बीच में बोल देते हैं कि यार क्यों कर रहे हो। फिर हम उनको बोलते हैं कि एक्चुअली इन्होंने जेंडर डिसाइड नहीं किया, जेंडर आपसे ही डिसाइड हुआ था। हम तो ऐसे नॉर्मली काउंसिल करने की कोशिश करते हैं, वो हमारे ऊपर आना स्टार्ट होते हैं। फिर 8-9 लोग उनके साथ और होते हैं, सब लोग चढ़ जाते हैं, जो डॉक्टर दिखेगा सबको मारने के लिए अंदर आते हैं। हम लोग छुपे, हम लोग पीडियाट्रिक्स में भाग के गए। पहला थॉट हमारे दिमाग में ये नहीं आया लेट्स कॉल पुलिस। पहला थॉट था बॉयज़ हॉस्टल से फटाफट 20 लड़कों को बुलाओ। 5 मिनट के अंदर अंदर हमारे सीनियर्स, जूनियर्स, बैचमेट्स सब लोग आए, तब जाके सिचुएशन को नॉर्मल किया गया। कहाँ है हमारे पास, बैंक में तो नीचे बटन होता है, जैसे ही रॉबरी का वो होता है मिनटों में बटन दबता है, 5 मिनट के अंदर अंदर पुलिस आती है। क्यों डॉक्टर्स के पास नहीं? हम भी तो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बात करना शुरू करेंगे ना तो बहुत लंबा चला जाएगा कि कहाँ कहाँ कितनी सिचुएशन ख़राब है। सिर्फ हमारे लिए ख़राब नहीं है, पेशेंट्स के लिए भी मैं बोल रही हूँ ख़राब है। कितनी बार ऐसा होता है कि आई एम रिपेयरिंग द एपिजियोटमी, जब हम लोग डिलीवर करते हैं तो हम लोग कट देते हैं ताकि टेयर ना हो जाए फीमेल को, तो उसको रिपेयर कर रहे हैं, मदर को फील हो रहा है मैंने एनेस्थीसिया तो दिया है। हाउ मेनी टाइम्स आई हैव आस्क्ड कि एनेस्थीसिया तो मैंने दिया है, शायद वो एनेस्थीसिया प्रॉपर्ली वर्क ही नहीं करता। मैंने अपनी सीनियर से पूछा मैं गलत दे रही हूँ क्या, मेरे को देना नहीं आ रहा क्या, लेकिन उस फीमेल को फील हो रहा है। आई एम कटिंग इट लाइक दिस सीजर से तो उसको फील हो रहा है, मैं उसको सूचर से ऐसे रिपेयर कर रही हूँ, उसको फील हो रहा है। तो इसका मतलब शायद उस एनेस्थीसिया में भी कुछ ना कुछ गड़बड़ है, पता नहीं मुझे है कि नहीं है, क्या नहीं है, लेकिन शायद कुछ ना कुछ है, वहाँ पे भी शायद करप्शन हो रहा है। तो ये चीज़ें बहुत बात करना शुरू करें ना तो बहुत कुछ है हमारे देश में जिस चीज़ को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। गरीब मर रहा है, ट्रस्ट में मर रहा है। हमने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करके मुझे लगा था मेडिसिन आएगी, मैंने तो लाइफ ज़्यादा सीख ली मेडिसिन से ज़्यादा, कि ज़िंदगी में मेरी दिक्कतें तो कुछ नहीं हैं, जो दिक्कतें हैं वो तो कुछ और लोगों की ज़्यादा हैं। तो या where do you think the problem lies? I feel from my end, I thought, hey, we tell our daughters, hey, take care of yourself, safety and all that. That is a different part of it. And that is not the only part of it. The most significant part happens inside the household where you're teaching your boy. And firstly, also teaching yourself, educating yourself with the right information. Because the information also varies for every person. You're in a village, the situation is different. You're in a city, the situation is different. So if I talk about the education, you're teaching biology, so many children. What is that one subject, or what are those 3 subjects which are missing from that very 3 topics which are missing from that very subject that you usually teach so many children? I teach biology to you can say 11th class, 12th class and the droppers who are preparing for NEET UG. The thing which is missing is sex education, but not in class 11, 12th. It should be introduced बहुत पहले, क्योंकि जब तक वो क्लास 11, 12 में आते हैं उनका खुद का एक ऑलरेडी रेडी हो चुका होता है कि what ये सब चीज़ें हैं क्या। अब it's next to impossible for me to change their mindset. सेक्स एजुकेशन इज़ समथिंग जो बहुत शुरू से ही बैड टच, गुड टच, एंड मुझे तो लगता है हमको थोड़ा सा पेट्रियार्की के बारे में भी बात करने की ज़रूरत है. देयर वाज अ स्टडी डन ऑन 1000 पीपल हु डिड रेप, एंड उनसे पता किया गया कि क्यों करते क्यों हैं, मतलब रीज़न क्या है, उनका मोटो क्या होता है. इट्स नॉट द सेक्शुअल डिज़ायर, इट्स बिकॉज दे वॉन्ट टू प्रूव दे आर सुपीरियर देन द फीमेल. दैट्स द रीज़न. तो वो सोच कहीं ना कहीं हमको निकालनी पड़ेगी, लेकिन वो सोच शायद हमारी जनरेशन हम अपने बच्चों में निकाल पाएँ, लेकिन तब तक लड़कियां बन के तो नहीं रह सकती ना.
तो इट्स हाई टाइम लॉज बनाना ही, स्ट्रिक्ट लॉज फिलहाल इमीडिएट सोल्यूशन है. Right. बाकी धीरे 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 हमको वो परवरिश, संस्कार, वो चीज़ें धीरे धीरे चेंज करनी पड़ेंगी. If you had to teach her bad touch, good touch in like one go, like in a simplistic language, because whatever we are recording right now is going to the internet. This might be replicated to so many. This applies to every kid who is watching this podcast. If you ever had to teach her, like just train her. यू नो, हम इंटरनेट पे बहुत वीडियोस होती हैं अबाउट गुड टच, बैड टच. इसके बारे में सबको पता है. जो एक चीज़ मैं बोलूँगी ना, ज़रूरी नहीं है इवन द पर्सन इज टचिंग ऑन द जेनाइटल पार्ट्स. अगर तुम्हारे वो शोल्डर पे भी टच कर रहा है ना एंड यू आर फीलिंग अनकंफर्टेबल, इवन दैट इज़ अ बैड टच. इफ़ यू फेल्ट अनकंफर्टेबल कहीं पे भी ना, इट इज़ अ बैड टच. डजंट मैटर. तो वॉट आई फील इज़ पेरेंट्स को ना ज़रूरत है वो वाला बॉन्ड बनाने की, कि अगर कुछ गलत मेरे साथ हो गया तो एक ऐसा बॉन्ड बना हुआ हो कि मैं जाके अपने माँ बाप को बोल पाऊँ. यूजुअली वो होता ही नहीं है हमारे यहाँ पे. बहुत बार ऐसे होता है, मैंने इतनी चीज़ें लाइफ में सफ़र किया हैं पर मैं पापा को जाके नहीं बोल सकती, क्योंकि शायद उसके बाद मेरे पापा जैसे रिएक्ट करेंगे दैट इज़ वे मोर वर्स देन विच इज़ लाइक जो सब कुछ उस टाइम पे मेरे साथ हो रहा होता है. मुझे लगता है कि हाँ, ये तो शायद बीत जाएगा, फिर पापा के दिमाग में जितना मैं चेंज करके पापा को लाई थी वो वापस ग्राउंड लेवल पे, ज़ीरो पे चले जाएंगे. तो पेरेंट्स को एक बॉन्ड बनाने की ज़रूरत है, और सिर्फ पेरेंट्स को भी नहीं, हमें भी ज़रूरत है. मुझे लगता है यू शुड डिस्कस धीरे धीरे. व्हेन यू विल लाइक कीप डिस्कसिंग, थोड़ा 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 थोड़ा. डोंट स्टार्ट एकदम ऑल ऑफ सडन. हाँ, कुछ भी हुआ मेरे को सब कुछ जाके बोलना है. इफ़ यू आर इन अ पोजिशन जहाँ पे ऑलरेडी बॉन्ड टूट चुका है पेरेंट्स के साथ, तो स्टार्ट थोड़ा थोड़ा. आज और थोड़ा कंफर्टेबली बताने लगी, कल और थोड़ा कंफर्टेबली, मैच्योरली, धीरे 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 वो बॉन्ड बनता जाता है. इट्स अ हाई टाइम. और एट द एंड ऑफ द डे मैंने देखा है, कुछ भी हो, कितना भी हो, मैं कितनी भी गलतियाँ करके आ जाऊँ, दो इंसान मेरे पीछे जो हमेशा खड़े रहे हैं वो है मेरे माँ बाप. हालांकि उन्होंने मेरे को नीचे भी खींचना तो नहीं, बट ओवर प्रोटेक्टिव भी हो गए, जिसकी वजह से शायद मैं ग्रो नहीं कर पाई. बट एट द एंड ऑफ द डे जो दो लोग थे मेरे साथ वो मेरे माँ बाप थे. सिंपल. सो इफ़ यू एवर फील अनकंफर्टेबल, इनफैक्ट टच भी छोड़ो, किसी के बात करने के तरीके से भी वो आपको बोलते हैं बेटा इधर आके बैठ जाओ. इफ़ यू एवर फील अनकंफर्टेबल, इट्स अ बैड टच. सिंपल. जस्ट जाके टॉक अबाउट इट, टेल अबाउट इट. वाई आर यू बीइंग लाइक ऐसे कि नहीं यार मैं बोलूँगी तो मम्मा क्या सोचेगी या मम्मा कैसे रिएक्ट करेगी. एंड एक्चुअली मेरे को बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं, कितनी लड़कियाँ मेरे को ऐसे मैसेज करती हैं कि एक अंकल है हमारे घर पे, उनका बहुत अच्छा रेपुटेशन है एंड एवरीवन लव्स हिम, लेकिन वो मेरे साथ ऐसा करते हैं. मैंने अपनी मम्मा को बताया एंड माई मम्मा डिड नॉट बिलीव मी. आई हैव ऑल लाइक मेरी 75% ऑडियंस फीमेल है. जो मैसेजेस मेरे को आते हैं इट ब्रेक्स माई हार्ट. समटाइम्स एक्चुअली ये टॉक्सिक भी हो जाता है मेरे लिए कि यार मतलब इवन आई नीड अ नॉर्मल लाइफ, बट देन आई लुक एट देम एंड मतलब आई एम नॉट दैट. जो फेमिनिज्म का डेफिनेशन चलता है ना, जो शूडो फेमिनिज्म का डेफिनेशन चलता है, नॉट द एक्चुअल फेमिनिज्म, मुझे कभी लगा नहीं था. मतलब मैं इन चीज़ों का मजाक उड़ाती थी कि नहीं मैं कोई फेमिनिस्ट नहीं हूँ भाई. बट when this case happened, I was like, not feminist, मुझे नहीं पता क्या हूँ मैं, मेरी क्या डेफिनेशन है जो मैं बोलने वाली हूँ. बट हर हफ्ते एटलीस्ट एक वीडियो मैं ऐसी डालूंगी, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता 1 व्यू आए 2 व्यू आए, लेकिन हर हफ्ते एक ऐसी वीडियो जाएगी जिसमें शायद एक 14-15 साल का जो बच्चा बैठा हुआ होगा, जो लड़की बैठी हुई होगी, और वो सोचेगी कि अगर मैंने ये स्टेप्स लिए, मेरी फैमिली ऐसे मेरे को रोकने की कोशिश करती है, मेरी सोसाइटी मुझे ऐसे रोकने की कोशिश करती है, और ये स्टेप्स मैंने लिए, तो क्या मैं उस पोजीशन तक पहुंच पाऊंगी कि नहीं पहुंच पाऊंगी. तो आई जस्ट वॉन्ट टू टेल देम कि येस इट इज़ पॉसिबल, आई हैव डन इट. तो अगर मैं कर सकती हूँ ना, तो तुम भी कर सकते हो. सिंपल. Sneha, have you ever like come across a situation where something like this has happened with someone you know? Yeah. Or have you seen something like this? No, I've heard from my friend. How did you feel after listening to that? I felt disappointment. What this society is turning into. Did she do something about it? Yeah. Glad. She told her parents. Then her father called police. The police came. They took the boy.
I think these are the parents we deserve. Yeah. Who don't wait for the second chance to arrive. Yeah. Do you ever have these conversations with your parents? Like about periods, safe touch, this touch? या फिर बस education of a different kind? Never? No. No. Why? यू नो आई डोंट नो व्हाई क्यों इन चीज़ों के बारे में कंफर्टेबल नहीं किया जाए. आई एम अ डॉक्टर राइट. Yeah. वी हैव सीन एवरीथिंग. हर्निया का केसेस हमको होता है. वी डोंट केयर अबाउट मेल फीमेल. वी आर डॉक्टर्स. ह्यूमन बॉडी व्हेन वी आर ट्रीटिंग देम इट्स अ मशीन फॉर अस. अभी जब ये केस हुआ तो आई वाज टॉकिंग विद माई डैड एंड आई टोल्ड एंड देन वी लाइक उनके अंदर 151 मिलीग्राम ऑफ सीमन मिला ऐसा कुछ बोला जा रहा है. बाद में माई मॉम कॉल्ड. माई मॉम वाज लाइक you were using those terms ना. I was like what terms? She was like वही सीमन वीमन बोल रही थी. पापा जी के सामने थोड़ी ऐसे बोलते हैं. मैं कहा क्यों? आई एम अ डॉक्टर. इट्स वेरी नॉर्मल. मतलब इसमें क्या है? जो चीज़ है तो है. हाँ पता है एक हवा बना दिया गया कि ये ऐसे है ये ऐसे है. जब ऐसे बना दिया जाता है ना तब कुछ लोगों को ना ऐसे होता है ऐसा क्या है. फिर वो लोग उधर करने की कोशिश करते हैं. वो लोग उधर उस गलत डायरेक्शन में जाने की कोशिश करते हैं. हम लोग मैं मम्मा और हम लोग ट्रिप से आ रहे थे. देयर वर फीमेल्स एंड द ड्राइवर वाज देयर. सो आई वाज टॉकिंग अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल वो सब चीज़ें. आई वाज टॉकिंग अबाउट कॉन्डम एंड ऑल. एक दो वर्ड ऐसे मैंने कुछ यूज़ कर दिए. कुछ आई वाज टेलिंग देम मम्मा को उन चीज़ों के बारे में. आई एम नॉट श्योर किस चीज़ के बारे में बात करी थी. मम्मा इसी जब ये बात हुई तब कह रही थी उस दिन भी जब हम आ रहे थे ना वहाँ से. अब हम लोग होते तो चल फिर भी हमारे बीच में तू बोल ले. ड्राइवर भी तो था. वो सोचेगा कि कैसी लड़की है ये कैसे कैसे वर्ड बोलती है. वहाँ कैसे कैसे वर्ड बोलती है का क्या मतलब है. आई एम अ डॉक्टर. सो ये थोड़ा सा ना टैबू को ये ब्रेक करने की Yeah. ज़रूरत है. I think And in that it's- case, we all need to. We all It's need not to be just open. responsibility of the parents. Yeah. It's your responsibility as well. In If you my can- school, we are having a board decoration. Board decoration topic is there. Each group is selected. So I told the leader of the group, let's just make something on menstrual cycle. She was like, no. I said, why? She said, I'll not do anything. I'll just you are only telling this. I'll not do this. I tell why just not normalize it? No, we can't do it. Hmm. This is sixth standard. I was so not even aware. I was in class 7th. मेरी एक फ्रेंड दैट डे हम लोग का वाइट यूनिफॉर्म था. वीक में 2 दिन ऐसा कुछ होता था स्कूल में. सो शी वॉज वेयरिंग अ वाइट ड्रेस एंड उसको पीछे रेड स्पॉट मुझे दिखा एंड लंच टाइम था. शी वॉज लाइक आई वॉन्ट टू गो होम. एंड हम उस टाइम पे पैटीज खा रहे थे तो मुझे लगा सॉस लग गया बिकॉज मुझे पता ही नहीं था. शी वॉज लाइक आई वॉन्ट टू गो होम. आई वाज लाइक व्हाई व्हाट हैपेंड. शी वॉज लाइक दिस. शी शोड मी. शी थॉट कि मुझे पता होगा. बट आई वाज लाइक तो फिर इसमें घर क्यों जाना है. सॉसी तो लगा होगा. फिर वो मैम बैठी थी जैसे तभी लंच ब्रेक ओवर हुआ. मैम आई. मैम ने उसने कपड़ा बांध लिया ऐसे. मैम वाज लाइक रक्षिता यू ड्रॉपर इसका घर पास में ही है. मैं मन में ऐसे सोच रही हूँ सॉस लग गया उसमें. मैडम मेरे को छोड़ के आने के लिए बोल रही है. लाइक मेरे को पता ही नहीं था. मेरे को बताया ही नहीं किसी ने. आई केम टू नो अबाउट ऑल दिस 10th क्लास में जब व्हेन आई मेरे मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुए तब आई केम टू नो. एंड फॉर द वेरी फर्स्ट डे जब ऐसा हुआ आई वॉज नॉट इवन एबल टू टेल इट टू माई मॉम क्योंकि मैं ऑलरेडी पढ़ चुकी थी. माई मॉम डिड नॉट टेल इट टू मी कि ऐसा कुछ भी होता है. आई वॉज लाइक अच्छा ओके. किताबों में ऐसा पता चला. फिर फ्रेंड से पूछा तो हो सकता है ना कोई ऐसा फ्रेंड कुछ ऐसे वे में बता दे जो बहुत ट्रॉमेटाइजिंग हो सकता है. क्या पता मैं उसको किस डायरेक्शन में लेके चली जाऊँ. सो इट्स अ पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लाइक educate and teachers responsibility. Because That's why I'm saying- because if we ask our friends and other people, they'll not be able to give us the right answer and may mislead us and make a fear, like it may make a fear inside us. Exactly. किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है. So that's why I told ना sex education introduce करने की ज़रूरत है. Not in class 11 12. Many girls in my बहुत class don't even know what does that even mean. So I was like, let's just bring a revolution type thing. Let them also know. They're like, no, we cannot do that. I said, I'll ask my class teacher. No, you cannot do that. Even when some girls,
they know, but they are like, you are mature, you are mature, not the proper word, you are mature. Even in the assembly, when our principal is talking, she was giving us she was giving us some information about you should not leave that on the walls and whatever. Then she told, boys, form a line and go. Why not let them know also? Because even they also must be having a sister, not even a sister but a mother also. My mom used to ask me, पैड फेंकना है डस्टबिन में तो रैप इट इन अ न्यूज़पेपर, और बिकॉज घर में पापा और भाई भी हैं, एंड वो जो अगर मम्मा लेके आएगी तो पापा के साथ या फिर उनके साथ कभी होंगे तो नहीं लेके आएंगे, बाद में मेरे लिए लेके आएंगी, मेरे कपड़ों के बीच में पीछे वो छुपाया जाएगा. Yeah. क्यों छुपा रहे हो भाई, ऐसा क्या हो गया मतलब. And it's the case with how you buy also. They wrap it in a black plastic bag. Yeah. And just because my mom raised me like this, आज तक मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं शॉप पे जाके मांग लूँ. मैं मॉल में जाके पैक करा के 4 सामान, और लेना भी नहीं होगा ना तो भी साथ में 4 सामान लेती हूँ. या फिर ऑनलाइन ऑर्डर, बेस्ट थिंग. मेरे से नहीं हो पाता है, आज तक नहीं हो पाता है. They even cover it with the newspaper, but the newspaper shows us the truth. Nowadays it is not happening. People are buying the news channels and put this, put that, hiding the reality, but it is showing us the reality. So we are covering that thing with the reality itself. क्या खा के पैदा किया है इसको? She'll do wonders. She'll do wonders. What would you tell her? Like she's going to become a doctor someday, or she aims to. What do you want to remind her with? She'll become way more successful than that. डॉक्टर ठीक है, वो शायद मेरी तरह करने को डिग्री कर लेगी, but I can see something else. Someday I'll be asking for her autograph and all. And she will not even reply to us. She won't even reply to me. Like, come back on Just Kidding, eh? Excuse me, do I know you? But I think like we'll plan that. We'll do one thing. We'll talk with your school, and we'll make sure that we conduct sessions on sex education. That would be really great. which will also be volunteered by you. Are you up for it? We'll talk with your school. You are mature. Yes. You'll do it, right? Say it into the camera. I will volunteer for a sex education class. I will. That's it. That's all that matters. So when it comes to your parenting, how was your parenting? सोच बहुत कंजर्वेटिव था. Hmm. पेरेंटिंग मतलब मेरी मम्मा बताती है कि जब शादी हुई, मेरी मम्मा जिस फैमिली से आती है वो काफ़ी अच्छे खासे विचारों वाले. मेरे नाना जी वॉज लाइक वेरी ओपन माइंडेड. व्हेन शी गॉट मैरिड तो बहुत बार ऐसा होता था कि पापा बाइक पे लेके गए हैं मार्केट में शॉपिंग करा के, और जैसे गांव में घुसने वाले हैं बाहर उतार दिया कि तू अब पैदल आ जा, लोग क्या सोचेंगे कि अपनी वाइफ को पीछे घुमा के घूमता रहता है. शी इज़ योर वाइफ. आज तक मेरे पापा फ़ोटो खींचना होगा ना, मेरी मम्मा के कंधे पे हाथ नहीं रखते हैं, शर्माते हैं. और मेरी जब मैं जब खुद पैदा हुई तब माई डैड वॉज एक्चुअली हैप्पी बिकॉज दे वॉन्टेड अ गर्ल पहले, ताकि लड़की थोड़ी मैच्योर होती है, फिर एक बेटा हो जाएगा ना तो अच्छा लगेगा. माई डैड वॉज वेरी हैप्पी. सो वन लेडी केम एंड वन लेडी वॉज लाइक, इतना क्या खुश हो रहा है, देख लिया किसी दिन कुछ नाक कटा के भागेगी ना ये, तब तेरे को समझ में आएगा. छोरी होने पे इतना ना खुश होया करते, मतलब लड़की के होने पे इतना खुश नहीं होते, किसी दिन नाक कटा के चली जाएगी तब तेरे को समझ में आएगा. बट फिर भी मेरे पापा ने बहुत ओवर प्रोटेक्ट किया है, कंजर्वेटिव भी बहुत रहे हैं, सोच भी वैसी रही है. 9th-10th क्लास तक एकदम बॉयज़ से तो बात होनी ही नहीं चाहिए. 11th-12th क्लास में अगर किसी लड़के का कॉल आ जाए काम के लिए भी, खुद का फ़ोन तो भूल जाओ, अगर किसी का आ जाए तो स्पीकर पे रखो, उसके बाद बात करो. फर्स्ट ईयर ऑफ मेडिकल कॉलेज, आई क्लियर्ड वन ऑफ द बिगेस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑफ द कंट्री. आई वॉज इन फर्स्ट ईयर ऑफ MBBS. स्टिल घर पे जब भी मैं जाती, मेरे उठने से पहले ऑलरेडी फ़ोन चेक हो चुका होता था. और इसीलिए बहुत लोग मुझे बोलते हैं, वाई डू यू लव मनी सो मच, थोड़ा तो रेस्ट कर ले. बट विद मनी इंडिपेंडेंस केम. टुडे आई नीड नॉट टू टेल पापा जी मैं ये कर लूँ क्या, आई जस्ट टेल कि पापा जी मैं ये कर रही हूँ, एंड ही इज़ फाइन विद इट. कितना भी मानो, कितना भी बोलो, लेकिन फॉर अ मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास, स्पेशली गर्ल्स, पैसे के साथ इंडिपेंडेंस आती है. कितना भी पैसे को नेगेटिव टर्म बना लो.
Yeah, true. I've seen it happening right in front of my eyes with my friends. And what do you think about money? What is your take on it? Money is something which can give you everything. Because for the poor, if they want, like a child, for example, a poor family, a middle class family's child is kidnapped. They'll be like, you come tomorrow, I'll do something. After that, you come tomorrow, I'll do something. You come tomorrow, I'll do something. Nothing happens. But for a rich kid, they are like, we found him in just 2 days. We did that. We did. Money is, no one is bigger. For God also, they think God is not bigger. Nor a father is bigger, nor a son is bigger. The bigger is money. Today's world works on money. If you don't have money, they'll not ask you, they'll not respect you, they'll not love you. But if you have money, they'll respect you, they'll love you. अरे दिल कम आजा 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 ये ले कितना प्यारा बच्चा है oh my god in front of the parents when the parents go एक नंबर का ये है एक नंबर का नालायक है एक नंबर का वो है You know, my brother, he is 20 years old. And हर रोज़ ऐसे होता है, उसके ऊपर इतना प्रेशर बना दिया गया है. मेरे को बोलते हैं, तूने बिगाड़ दिया इसको, तू इसको कुछ कहती ही नहीं. हर रोज़ मेरे को कॉल करके, अब मेरे ऊपर दे हैव मेड मी अ पेरेंट, और हर रोज़ कॉल करके बोलेंगे, तू इसको कुछ कह तो दिया कर, तू इसको कह देना थोड़ा और पढ़ लेगा. Just because he is not earning money. अरे he is doing so good in his life. He doesn't drink, he doesn't smoke. कुछ भी वो नहीं है. हर सैटरडे संडे बेचारा चुपचाप घर आता है. मैं कहती इतना शरीफ लड़का ना तुमको दिल्ली में रह के फाइनल ईयर का जो इंजीनियरिंग का लड़का है ना नहीं मिलेगा तुमको ऐसा मिला हुआ है, इतना रिस्पेक्ट करता है. एंड ही हैड 4000 रैंक इन जेई. स्टिल उसको ऐसे वो करते हैं और मुझे बहुत बुरा फील होता है क्योंकि अब मैंने पैसा कमाना शुरू कर दिया. नाउ दे आर एक्सपेक्टिंग वो भी पैसा कमाना शुरू कर दे और वो फिर ऐसा भी कंपैरिजन करना शुरू करते हैं कि दोनों इक्वल होने चाहिए. मैं कहा हर बच्चा ना सेम नहीं होता. कुछ लोग एम्प्लॉयर होते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छे एम्प्लॉय होते हैं. तो आप ऐसे किसी को कम्पीट मतलब वो कर नहीं सकते कंपेयर. ही विल डू गुड इन हिज लाइफ. सबका अपना अपना पेस होता है. मैंने 19 में अर्न करना शुरू करा, ही विल अर्न 24 में जाके या 25 में जाके, डजंट मैटर एट ऑल. पर स्टॉप कंपेयरिंग. एंड टॉकिंग अबाउट दिस मनी, आई ऑल्सो लव मनी. आई जस्ट लव मनी. मतलब मैं कभी किसी का बुरा नहीं करती. मेरी वजह से even my sister loves money. She says for one time once I pranked her. My parents called her. They said, hello, her name is also Sneha, तेरी शादी पक्की करके आए हैं? शादी पक्की करके आए हो किससे? एक हलवाई है, बहुत पैसा उसके पास, बट तवे जैसा काला है, चलेगा ना? अरे नहीं 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 नहीं. शी स्टार्टेड क्राइंग. मेरे को नहीं चाहिए ऐसा, मेरे को ऐसा पति चाहिए जो एकदम जाके फ्लाइट में घूमता रहे, बहुत पैसा रहना चाहिए, गोरा गोरा चाहिए. ऐसा कैसा वो बोलते पैसा तो बहुत है उसके पास. पैसा बहुत है तो क्या हुआ, दिखना तो अच्छा चाहिए ना. पैसा कितना भी हो लेकिन वो तो बस हलवाई है. हलवाई से थोड़ी ना करूँगी मैं शादी. So what kind of man would you like to get married when you grow up? No one. why Because they ruin your life. no it's not तेरा like that. काम है ना बच्चे को देखने का, उसको कम मार्क्स आए तो मैं क्या करूँ? मैं तो 2-4 घंटे ही रहता हूँ ना घर में, तू तो 24 घंटे रहती है उसके साथ. Not all men are like that. Yeah. I'm telling you. Not all. Some green flags Many green flags. like him. बाप रे बाप. Wow. Podcast खत्म. Let's go. मेरा काम हो गया. Do you think I'm a green flag? Yeah, of Why? course. Because you help people and like the way you are is the best. Because I heard somewhere that you left a multinational company job to do this work. She's your loyal fan. Green flag, of course. Guys, my career is over. Retired at before 30s में रिटायर होने वाला था. 30s के पहले ही हो जाता हूँ, है ना? मेरा हो गया. लाइफ में जो सुनना था वो सुन लिया बस. अब और कुछ नहीं चाहिए. If this was your 11-year-old version, what would you like to tell her?
number one thing, we'll start from here only. Not all men are like that. Look at your dad. Look at जो भी है, हमेशा लाइफ में ना be always be optimistic. The only thing which helped me आज तक was because I was always positive. मैं रो रही हूँ ना, मेरे को ऐसे होता ये इतना गंदा आज मेरे साथ हुआ ना, तो इसका मतलब मेरे साथ कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, इसीलिए आज मेरे साथ गंदा हो रहा है. एंड समडे आई विल टेल स्टोरी. अगर मेरे साथ जो चीज़ें मैं बताती हूँ यहाँ पे वो नहीं हुई होती तो आज मेरी स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग होती ही नहीं. तो फिर तुम लोग क्यों सुनते मेरे को? समथिंग लाइक दैट हैपेंड. और अभी भी मेरे साथ कुछ गलत होगा तो मे बी 10 years later आई विल हैव अ बिगर स्टोरी टू टेल. सो यू शुड अडोर पेन एंड हैप्पीनेस एज वेल. लाइक दोनों, भगवान को दोनों ही प्यारे हैं. खुशी मिल रही है, दुख मिल रहा है, दोनों ही चीज़ों को इक्वली वो करना है. खुशी में बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना है और दुख में बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट नहीं होना है. तो दोनों चीज़ें आएंगी लाइफ में, अप्स एंड डाउन्स चलेंगे. जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ, लव योर सेल्फ लाइक एनीथिंग. किसी और का बुरा मत करना, जहाँ खुद का भला हो रहा है उसको छोड़ना मत. और कभी लाइफ में बहुत दुख आ रहे हैं, स्टार्ट वीडियो and just look at yourself. Oh, I'm looking so good while crying. Sometimes to love ourselves, we have to be selfish. Yeah. If she is your 25-year-old version, what would you say her? I'm 24. I'm just normalizing, guys, just like periods and sex education. Girls and their obsession with age, you Yeah. know. You don't ask girls their age, duh. Yeah. And to man their salary. Cis code, you know. No one will see your work, no one will see your salary, only they will see what you did in your life. And these days we are also earning. So salary हमारे पास भी है. बराबर. कंपटीशन हम अभी मर्दों का कंपटीशन खत्म हो गया, अभी लड़कियां ही Don't you पछाड़ रही think सब. you got her and we paired up? You dominated me. For the next podcast, I need a boy with me. He'll also pair up with us. But no issue. Vibe check. But what did you tell her? I would tell you that whoever, if you know you are doing good and someone is criticizing you, don't pay attention to that. You mean you are the best. No one is just better than you. You were good, then you turned into best and now you're better. Sky is not the limit. You can go above that as well. Like Kalpana Chawla did. She went to space. Sky is not the limit. You can go above anything. If you are right, you know you are right, then you can do anything. Just remember that you have to respect whatever the elders are. Just listen to what your heart says. Don't, for some reasons you have to listen to your brain, but for all the time you have to listen to your heart. With that, we end this podcast. Sneha has gotten something for you. What is it? What is it? There you go. All right. She has meat. That for you. This is so beautiful. Express my full gratitude for your time. Keep going, you slay queen. Show it to us also. Like, what has she written? No. Something personal. All right. This is so beautiful. Thank you so much. आज तक मेरे लिए कार्ड कभी किसी ने नहीं बनाया. जो काम शायद लड़कों को करना चाहिए था, अब हम लड़कियां एक दूसरे के लिए करेंगे. Thank you so Anyways, much. who brought this podcast to you? Me. But no. Thank you so much, Rakshita. ये मेरी हर वीडियो में आई प्रॉमिस रखा रहेगा. हर वीडियो में ये दिखेगा सबको. एंड आई एम जस्ट सो थैंकफुल टू यू एज वेल. लाइक मैं आज सबको वहाँ पे क्रिएटर्स इवेंट में भी बोल रही थी कि आई डोंट नो, आई हैव अ फीलिंग आज का पॉडकास्ट ना बहुत अच्छा होने वाला है. बट आई डिड नॉट एक्सपेक्ट. आई थॉट यू विल ब्रिंग अ क्रैकर. यू ब्रॉट अ बिग बॉम्ब.
पटाखा आया है एकदम. मुझे ये उम्मीद तो Sutli bomb. नहीं. Yeah. Bro, Sneha, I'm so proud of you. You'll Trust come back me. on the next podcast? Sure. Done. If Sorted. you think na कि you can achieve X in your life, I am telling you, you'll be able to achieve 100X. You have the potential. I am telling you. मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि I can see my younger self in you. You are 10X better than what I was. I am the worst. No. I told you ना, आज के बाद कुछ भी चीज़ होगी लाइफ में, there should be a song जो पीछे चलना चाहिए, self obsessed song, and then you walk, then you sit. Just सब जितना भी होना जहाँ जो भी लोग आसपास बैठे हों, there should be एक वो ऑरा होता है ना कुछ लोगों का, वो बैठते हैं तो ऐसे ही फील होता है अरे Plus 9,900,400 aura. Plus 99,000,000 aura. That's the way to go. Thank you so much, Rakshita, for being a part of this. I hope you had thank fun. you so much Sneha for being the part of this. Thank you, Sneha, I for love being you. my. Hey, भूल गई मेरे को. Literally भूल गई. यहाँ पे मीम मत बना देना कोई. Thanks for having. It was pleasure having you here. Come back. Of course. Thank you, guys. See you next time.